Hello friends, I have made another video for you after a long gap, and that is the Tiger King of the supplementary reader Vistas. And I want to inform to those students who are from Assamese medium and want political science notes of Part A, Contemporary World Politics, Homohamoid Bishwar Rajniti. You guys can check my post on community guidelines, and if you want to buy these, ping me up on the given number. Now, let's start the lesson. Kolki, a pen name of Ramaswamy Krishnamurti, is the writer of The Tiger King. It is a ridiculous story that highlights the king's misuse of power and foolishness and false pride. ये स्टोरी किंग की शक्ति के दुरुपयोग, मूर्खता और झूठे अभिमान पर प्रकाश डालता है. The main character of the story is the Maharaja of Pratibandhapuram, who is no more at present. His actual name was Jilani Jangjang Bahadur. Now, I will tell you the full story of the Tiger King. Part 1. The most interesting incident of the story is that when the Tiger King was 10 days old, the royal astrologers had foretold that the child would grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions, but they unwillingly spoke out that one day he would have to die. इस स्टोरी का सबसे दिलचस्प घटना है जब टाइगर किंग ओनली 10 डेज का था. शाही ज्योतिषियों ने शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि बच्चा बड़ा होकर योद्धाओं का योद्धा बनेगा, बहादुर यानी कि साहसी बनेगा, चैंपियंस का चैंपियन बनेगा. लेकिन ज्योतिषियों ने अनिच्छापूर्वक एक बात कह दी कि एक दिन उसे मरना होगा. He would have to die one day. Hearing this, the 10 days old infant uttered that all those who are born would one day have to die, and it was a natural phenomenon, so not needed to be foretold. ये बात सुनकर 10 दिन का शिशु बोलने लगा कि वे सभी जिसका जन्म हुआ एक दिन मरना ही है, और ये एक प्राकृतिक घटना है, इसीलिए भविष्यवाणी का जरूरत नहीं है. The infant asked them the manner of his death. The astrologers were confused for a moment, hearing the infant's voice. वो शिशु ज्योतिषियों से पूछा कि उनका मृत्यु कैसे होगा. तब ज्योतिषियों शिशु का आवाज सुनकर एक पल के लिए कंफ्यूज्ड हो गया, यानी कि उलझन में पड़ गया. The chief astrologer announced that the prince was born in the hour of the bull, and since the bull and the tiger are enemies, so death would come from the tiger. चीफ एस्ट्रोलॉजर ने अनाउंस किया कि राजकुमार का जन्म बेल के समय हुआ था. जहाँ तक कि बुल एंड टाइगर हमेशा शत्रु है, इसलिए राजकुमार का मृत्यु टाइगर के द्वारा होगी. As soon as he heard it, he gave a growl and became angry and uttered terrifying words, "Let tigers beware." जैसे ही राजकुमार ये बात सुना, वो और गुस्से में डरावनी बात बोलने लगे कि टाइगर्स को सावधान रहने दो. Let tigers beware. टाइगर्स को सावधान रहने दो. Time passed by. The prince grew taller and stronger day by day. The prince drank the milk of an English cow.
He was brought up by an English nanny. He was tutored in English by an Englishman. समय गुजरता गया। राजकुमार दिन ब दिन लंबे और मजबूत होते जा रहे थे। राजकुमार इंग्लिश गाय का दूध पीते थे। उसे पालन पोषण किया एक इंग्लिश नानी ने और एक इंग्लिशमैन उसे पढ़ाते थे। When he was 20, the responsibility of the kingdom was offered. People in the kingdom discussed the astrologer's prediction and it came to his ears. जब वो 20 years के हो चुके थे, राज्यों का रेस्पॉन्सिबिलिटी उसे सौंपा गया। राज्यों के लोग ज्योतिषियों के प्रेडिक्शन पर बातें करने लगे और वही बातें राजकुमार के कान तक पहुंचा। Then he decided to kill 100 tigers in the forests of Pratibandhapuram for self-defense to prove the astrologer's prediction wrong. तब वो प्रतिबंधापुरम के फॉरेस्ट्स में 100 टाइगर्स मारने की डिसीजन लिया अपनी सुरक्षा के लिए। वो ऐसा करने का प्लान किया ताकि वो प्रूव कर सके कि ज्योतिषियों के द्वारा की गई भविष्यवाणी गलत है। The astrologers clarified the prediction saying that he might kill 99 tigers but he must be very careful in killing the 100 tiger. तब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी को स्पष्ट करने के लिए बताया कि राजकुमार 99 टाइगर्स मार तो लेगी लेकिन 100 यानी कि 100 टाइगर मारने में उसे बहुत केयरफुल रहना आवश्यक है। The prince challenged the astrologer's prediction that he would also kill the 100 tiger. राजकुमार ने ज्योतिषियों का प्रेडिक्शन को चुनौती के तौर पे लिया और कहा कि वो 100 टाइगर मारेगी। The astrologer replied that if he would be able to kill the 100 tiger, then he would tear up all his books on astrology, set fire to them, he would cut off his tuft, crop his hair short and become an insurance agent. तब ज्योतिषियों ने कहा कि अगर वो 100 टाइगर मारने में सक्षम हुआ तो वे एस्ट्रोलॉजी पर जितने किताबें उनके पास है वो सारे फाड़ कर जला देंगे। वे उनके सारे बालों के गुच्छा काट देंगे और बाल छोटा कर देंगे और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे। Part 3. From that day, the state banned tiger hunting by anyone except the king. Once the king was in danger of losing his throne when a high-ranking British officer visited him and wished to hunt tigers in Pratibandhapuram, but the king refused permission. उसी दिन से राज्य में राजकुमार को छोड़ के कोई भी व्यक्ति को टाइगर हंटिंग करना बंद कर दिया। एक बार राजकुमार को अपनी राजगद्दी खोने का खतरा सामना करना पड़ा जब एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधापुरम में टाइगर हंटिंग का इच्छा लेकर उनके पास आया। राजकुमार परमिशन देने की इनकार की। The king used British officer's wife, Duraisani, to avoid his kingdom being confiscated by the British officer. तब राजकुमार ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा जब्त किए गए राज्यों को बचाने के लिए एक चाल चली। उसने ब्रिटिश ऑफिसर के वाइफ डुराइशानी को यूज़ किया क्योंकि राजकुमार को पता था कि डुराइशानी की हस्बैंड उन पर प्रभावित थे। He sent some diamond rings to his wife to choose 3 of them
But Duraishani kept all the diamonds to herself and sent him a reply thanking him for his gifts. राजकुमार ने दुराईशानी को कुछ डायमंड रिंग्स भेजे और उसमें से 3 रिंग्स चूज करने को कहा, लेकिन दुराईशानी अपने लिए सारी रिंग्स रख ली और राजकुमार को रिप्लाई में गिफ्ट्स के लिए थैंक्स भेजी. दो द डायमंड रिंग्स कॉस्ट ₹3 lakh, but he had managed to retain his kingdom. भले ही राजकुमार को डायमंड रिंग्स के लिए 3 लाख खर्च करना पड़ा, लेकिन वो अपने किंगडम को बरकरार रखने में कामयाब रहे. Part 4. The king killed 70 tigers within 10 years. One day he called the Diwan and told him to investigate a girl that he could marry in the royal family of a state with a large tiger population. 10 years के अंदर राजकुमार 70 टाइगर्स को मार डाला. एक दिन वो दीवान को बुलाकर कहा कि वो ऐसी एक गर्ल का संधान या पता करे जो किसी स्टेट के रॉयल फैमिली का हो और उसके पास टाइगर्स की एक बड़ी आबादी हो. द दीवान फाउंड द राइट गर्ल as suggested by the king. The king married and continued killing tigers, and thus he killed 99 tigers. दीवान ने राजकुमार का पसंद के एक सही लड़की का पता किया. राजकुमार का शादी उसी लड़की से हुआ. राजकुमार का उपद्रव फिर से बढ़ गया. उसने टाइगर्स मारना जारी रखा और इसी तरह कुल 99 टाइगर्स मार चुके थे और लोग उसे टाइगर किंग के नाम से जानने लगा. Part 5. Now it was the time of killing the 100 tiger, and the king remembered the astrologer's prediction. On the other way, the tiger farms had run dry, and where to find the 100 tiger? अब बारी आया 100 टाइगर की और राजकुमार ज्योतिषियों के प्रेडिक्शन को बार बार याद कर रहे थे. दूसरी ओर जितने टाइगर फार्म्स थे वो भी सारे खाली हो चुके थे. अब 100 टाइगर कहाँ मिलेगी? As the days passed, the king became angry. So he called the Diwan and asked him to double the land tax of the villagers forthwith. दिन बीतता गया, राजकुमार का गुस्सा बढ़ने लगा, इसलिए वो दीवान को फिर से बुलाकर गांव वालों का लैंड टैक्स तुरंत डबल करने के लिए कहा. One day, the Diwan brought a tiger from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. एक दिन दीवान मद्रास के पीपुल्स पार्क से एक टाइगर लाकर उसके घर में छुपाकर रख दिया. At midnight, he dragged the tiger with the help of his wife and led him out at the spot where the king was hunting. मिडनाइट के समय दीवान अपनी वाइफ के मदद से उस टाइगर को घसीटते हुए बाहर निकालकर एक ऐसे स्थान पर छोड़ा जहां राजकुमार शिकार कर रहे थे. One of the hunters shot the tiger dead. Now the king was happy. तब एक शिकारी ने उस टाइगर को मार डाला. अब राजा खुश हुआ. A few days later, the king's son's third birthday was celebrated. कुछ दिन बाद राजा का बेटा का थर्ड बर्थडे सेलिब्रेट हुआ. The king bought a wooden tiger from a toy shop as a birthday gift at 300 rupees. Its actual cost was only 2 annas and a quarter. राजा ने बेटा को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए टॉय शॉप से
₹300 का एक वुडन टाइगर लाया, जिसका एक्चुअल प्राइस था 2 आनास एंड ए क्वार्टर, यानी कि 2.25 आने। कारण दुकानदार को पता था कि राजा को कम दाम बोलने से राजा नहीं लेंगे, इसीलिए वो खिलौना के दाम ₹300 कहा। On that day, both the father and son were playing with that tiny little wooden tiger. उसी दिन दोनों बाप बेटा उस छोटा सा वुडन टाइगर के साथ खेल रहे थे। Since the toy was not well crafted and its surface was rough and tiny silvers of wood quills all over it, जहाँ तक कि वो खिलौना अच्छी तरह से तैयार नहीं किया गया था एंड इसके सरफेस भी रफ था और इसके चारों ओर सिल्वर के छोटे छोटे टुकड़े थे। Suddenly, one of those silvers pierced the king's right hand. खेलते समय सिल्वर का एक टुकड़ा राजा के राइट हैंड में घुस गया। Though he pulled it out the next day, infection flared all over the arm. राजा उस टुकड़े को खींचकर बाहर तो निकाल लिया, लेकिन नेक्स्ट डे इन्फेक्शन पूरे हाथ में तेज गति से फैल गया। Three famous surgeons were brought in from Madras and they decided to operate. मद्रास से 3 फेमस सर्जन्स को लाया गया और वे लोग राजा के हाथ ऑपरेट करने का डिसाइड किया। After the operation, the surgeons came out of the theater and announced that the operation was successful and the king was dead. ऑपरेशन के बाद तीनों सर्जन्स ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया और अनाउंस किया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और राजा मर चुका। इन दिस वे द 100 टाइगर टुक हिज लाइफ एंड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन केम ट्रू। और इसी तरह 100 टाइगर राजा का जान ले ली और ज्योतिषियों का प्रेडिक्शन सच हुआ। ये स्टोरी हमें ये मैसेज देता है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी पावरफुल हो, वो अपने तकदीर और जीवन के दौर को बदल नहीं सकता और मृत्यु मनुष्य जीवन का एक इनएविटेबल पार्ट है जिसे कभी रोका नहीं जा सकता। ये स्टोरी हमें ये भी बताते हैं कि राजा का घमंड था कि ज्योतिषियों के आगे वो हार नहीं मानेंगे। अपने पावर और सुपेरियोरिटी का प्रभाव को ज्योतिषियों को दिखाएंगे, लेकिन सब कुछ मीनिंगलेस था।